Okay. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss the midterm paper and what we did in this previous exam. So I'm going to give you a detailed feedback on it, and I hope that whatever, since it was completely transparent testing, okay, it was completely transparent testing, and on your part, some people have performed very well, and some people could not perform as what they expected. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay, now this is the very first question that is related to alliteration. What is alliteration? Read the stanza below and underline the words producing all the. सर जी जी बोले. सर आप ये हमें शेयर करेंगे? क्या शेयर करूंगा? क्वेश्चन I पेपर. mean ये जी जी क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी आपके पास आपने दिया है ना, उसमें तो कोई इशू नहीं है. आप I'll be recording it. आप उस पे देख लीजिएगा. देखें, the first one was related to alliteration. I asked you to define it, and then I asked you to find I asked you to underline the words that are creating alliterative effect. Alliteration क्या है? Some people said this is a repetition of vowel sound. Some said repetition of consonant sound. Some said that repetition of any sound. Some कुछ mix सी बातें चलती. Look here, ba sound is being repeated, so this is alliterative effect being created by ba. Fa is also repeated. Fleeting, fleeced flocks, fleeced flock, fleeced flock, ये fa भी repeated हो रही है, but I've just highlighted ba. अगर आपने एक भी लिखा है ना उसमें और वो ठीक लिखा है तो then it is okay. नहीं ठीक लिखा तो marks कटे हैं. If you are going to find out this one, ठीक है, तो ये अगर बा निकाला तो बा सारे का सारा निकालना था. ये नहीं है कि that is not only here कि यहाँ का भी आपने लिख दिया बाकी नहीं लिखा. I wanted you to underline the word only. ठीक है, ये नहीं कि आपने इसमें से इसको अंडरलाइन कि ये आपने किया था बा एंड देन बा. दिस इज फा, ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. ठीक है. सो कुछ लोगों ने एलिट्रेशन की बजाय अगर एसोनेंस को लिखा, सिर्फ एसोनेंस की बात की या कॉन्सोनेंस की बात की. व्हेन आई टॉक टू यू देन आई सेड दैट एलिट्रेशन रेपिटेशन ऑफ अ साउंड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. ठीक है, तो कुछ लोगों ने बात ही कुछ और की, यानी कि दैट वाज कंप्लीटली इररेलेवेंट. और मुझे अच्छी तरह याद है कि आई हैव रिकॉर्डेड द लेक्चर्स एंड आई हैव आस्क्ड यू टाइम एंड अगेन टू लिसन टू दोज रिकॉर्डिंग्स. आई हैव सेपरेटली रिकॉर्डेड ईच एंड एवरी आइटम. याद है ना? ऐसे ही एक एक को मैंने रिकॉर्ड करके लादा से छोड़ा ताकि आप उसको अच्छी तरह पढ़ ले, समझ ले. Then comes the next element, that is assonance. So you can see here कि assonance में आपने क्या किया, आपने entire stanza के अंदर assonance देखनी थी. ठीक है, assonance जो है वो vowel sounds की repetition है. जैसे यहाँ पे क्या है, I की repetition, I की repetition, fire, aspire, I, dine, fire, skies. ठीक है, अब यहाँ पे किसी ने ये भी इसकी repetition लिखा, deep and distant. ये तो A और E है ना, इसकी तो repetition, ये तो I की, हमने I sound की repetition को highlight करना था. तो कुछ लोगों ने किया या इसको किया या आधा किया, partially किया, तो marks वहाँ पे कटे. Then comes repetition of consonant sound. You can see here, ये मैंने उसके अंदर वो डब्बे के अंदर दिया हुआ है, S repeat हो रहा है, gives, earnest, bells, ask, some, mistake, sound, sweep, easy है. अब यहाँ पे ये repetition हो रही है. अब यहाँ पे जो है वो mistake and shake, इसमें के तो repeat हो रहा है 2 दफा, एक, बट उससे ज्यादा repetition consonants की एक का S sound जो है ना वो repeat हो रही है. या आपने सारे का सारा हाईलाइट नहीं किया, या आपने पार्शियली हाईलाइट किया, या आपने मेंशन ही नहीं किया. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी मसले थे. मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक और भी काम किया कि वर्डीनेस भी मैंने देखी, एक्सपीरियंस की कि आपने फालतू बातें ज्यादा लिखी जिनकी जरूरत नहीं थी. ग्रामर की मिस्टेक्स मौजूद थी, स्पेलिंग की मिस्टेक्स मौजूद थी. रन ऑन सेंटेंसेस, यू हैव क्रिएटेड रन ऑन सेंटेंसेस. Your sentences were fragmentary. Sometimes they were lacking subject, sometimes they were lacking object. Then there was wordiness, means कि फालतू बातें लिखी गई. अच्छा, most of people fail to understand the question. I ask you to define and then differentiate. आगे चलते हैं, उसमें बात करते हैं. Look here, what is the difference between simile and metaphor?
तो सिमिली और मेटाफर दोनों क्या है, उसके बाद क्या डिफरेंस है, उनको कौन सी चीज इन दोनों को आपस में एक दूसरे से मुख्तलिफ करती है. I told you when I was delivering my lecture, I recorded each and everything. Then see here, love is a song. Love is a song, ये मेटाफर है कि लव को मेटाफोरिकली ये कहा गया, लव लव नहीं है, दिस इज अ सॉन्ग. ठीक है. थीम, रिपीटिंग लाइक द वॉइस, ये थीम को वॉइस की बात की जा रही, रिपीटिंग लाइक, दिस इज मेटाफर दैट वी कैन सी हियर. ठीक है. ये मेटाफर थी, ये सिमिली थी. आप में से कुछ लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया, कुछ ने नहीं किया, या बस सिंपल लिख दिया, अंडरलाइन नहीं किया उस चीज को. Then I ask you about poetry. What is poetry and what makes objective poetry, subjective and objective, different from each other? So क्या चीज है, कौन सा एलिमेंट इन दोनों को मुख्तलिफ करता है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव को? एक पर्सनल है, दूसरी इम्पर्सनल है. यही डिफरेंस है ना. एक के ऊपर, एक में पर्सनल फीलिंग ज्यादा, दूसरे में वो है. और जहाँ पे ऑब्जेक्टिव पोइट्री में फिर किस तरह की चीजें, किस तरह की पॉम्स आती हैं, और सब्जेक्टिव में कौन सी आती हैं, जानराज चेंज हो जाती है खुद ब खुद. देन व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट मेक्स फिक्शनल लिटरेचर डिफरेंट. अच्छा, पोइट्री में क्या मेट्रिकल कंपोजिशन है. आपने उसमें लिखा जी पोइट्री में फीलिंग्स होते हैं, फीलिंग्स होती, जरूरी तो नहीं है फीलिंग्स हो, सब्जेक्टिव पोइट्री में हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं होते. बट मेट्रिकल कंपोजिशन होती है, मीटर होता है, खास कोई राइम स्कीम, मैंने कुछ एलिमेंट्स की बात की, आप उसमें उन्हीं बेसिस पे उनको डिफाइन करते हैं. लिटरेचर कुछ लोगों ने अच्छा लिखा, लेकिन फिर फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल में एक ही बात है, एक इमेजिनेटिवली क्रिएटेड है, दूसरा इमेजिनेटिवली रियलिस्टिकली क्रिएटेड है, डिफरेंस नहीं बता सके हम. सो उसके बाद जो लास्ट था वो ड्रामा से रिलेटेड था कि व्हाट इज ड्रामा एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स, एंड यू पीपल हैव डिस्कस्ड इट, है ना. ड्रामा के एलिमेंट्स के बारे में बात किया, ड्रामा को डिफाइन किया, वहां भी डिफाइन करते हुए आप लोगों ने गलतियां की. तो एक एक चीज को आई हैव टेस्टेड इट ट्रांसपेरेंटली. ठीक है. एक एक चीज को मैंने देखा, उसके बाद मैंने ये चीजें आपकी ग्रेड की हैं कि आपने उससे मुतल्लिका अगर जवाब दिया तो आपको मार्क्स मिले, अगर नहीं दिया तो नहीं मिले. आपकी क्लास में 2 बच्चों ने 17 मार्क्स भी लिए, आपने देखा होगा that some people got 15 also, और कुछ लोगों ने 1 और 0 मार्क्स भी लिए. ठीक है. और जहाँ पे आपने नहीं लिखा कुछ भी तो उसके मार्क्स भी नहीं आते ना. अभी आपने में से किसी ने कुछ पूछना है रिजल्ट का, या अगर आप देखना चाहते हैं तो कल मैं यूनिवर्सिटी विजिट करूंगा मॉर्निंग टाइम में, आप अपने आंसर शीट्स कल देख सकते हैं. ठीक है. ये रिजल्ट आपके सामने आपने निकाला है उसमें से, गूगल क्लासरूम में से कि नहीं निकाला? यस सर, निकाला था. तो बताएंगे थोड़ा सा मुझे. सर सैटरडे वाले दिन आप हमें नहीं दिखा सकते नहीं, ये सैटरडे वाले दिन नहीं दिखा हमारे सकते. पेपर? सैटरडे वाले दिन जनाब गजेटेड हॉलीडे है, तो सैटरडे वाले दिन हम आ ही नहीं सकते, यूनिवर्सिटी बंद होगी, कैसे दिखाएंगे? सर यानी नेक्स्ट सैटरडे, उससे अगली जब क्लास होगी ऑन नहीं बेटा, कैंपस, क्योंकि नेक्स्ट सैटरडे को क्योंकि नहीं. सर हम तो मंडे से ही जा सकते हैं. देखो, नेक्स्ट सैटरडे को इसलिए नहीं दिखा सकता कि ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सब कुछ लेट हुआ, वरना मैंने तो पहले जमा करवा देना था. समझ आ रही है बात? मैंने तो इसको पहले जमा करवाना था. मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं सैटरडे को लेके आऊंगा और आपको दिखा भी दूंगा, रिजल्ट भी दे दूंगा, सब कुछ. तो उन्होंने कहा जी कि आप उनको इसी तरह दिखा बता दें, जिसने देख उनको बुला ले, अगर उनमें से जो भी आ सकता है वो देख ले. बाकी इसमें यही कुछ है, किसी के साथ ये आपके सामने मैंने आपने वहाँ पे निकाल लिया. मेरे ख्याल मुझे जरूरत नहीं है बताने की डिटेल के साथ कि कहाँ पे आप मजीद अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप बेशक सेपरेटली पूछ सकते हैं. जिसने पूछना है अपने पेपर का, मैं भी खोल के आपके सामने बोलता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा. हाँ जी, कि जिसको है कोई डाउट है तो प्लीज पूछे, मैं बता देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ आपने क्या क्या गलतियां की हैं. सर आज हमने पढ़ना नहीं, आज आपकी डिस्कशन की बारी है जनाब. मैंने तो पहले आपका पेपर की आज डिस्कशन का डे है, और मेरे ख्याल में मैंने बताया भी था कि आपने वो अपनी शॉर्ट स्टोरी तैयार करके आनी है, याद है? ओ यस सर. हाँ चलें जी, बताएं किसने पूछना है अपने पेपर का, मैं भी बता देता हूँ, मेरे सामने पड़ा है. बोले बेटा, जिसने पूछना है प्लीज. ये जो मिड टर्म होता है इसमें दिस इज सॉर्ट ऑफ एन आई ओपनर, के बंदे को अंदाजा हो जाता है कि सर मेरा बता दें. सादिया बतूल, आपका तो रिजल्ट मेरे ख्याल में अच्छा है. सादिया बतूल है ना, सादिया का अच्छा है, सादिया बतूल का मेरे ख्याल में अच्छा है. रेज नंबर क्या है आपका?
15। आपका तो अच्छा है, आपने क्या देखना है, 17 मार्क्स थोड़े तो नहीं होते, मोर देन इनफ। सर फिर भी 3 नंबर कम है ना, तो हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि क्या गलती। 3 नंबर कम है। 3 नंबर जो होते हैं ये देखें, जब आप whenever you are asked to write anything, for example, if you are asked to write the answer, if you are asked to write define anything, मैंने शायद शुरू में बताया था कि आप उसके लिए एक एग्जांपल देते हैं ना, एक्सट्रैक्ट करने वाला मैंने एलिमेंट आपसे कहा कि एक्सट्रैक्ट करें, तो वो जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो इवन देन जो होता है कि वो जो एक्सट्रैक्शन होती है, फिर भी वो तो एक अलग एलिमेंट था, क्वेश्चन का पूछा गया, लेकिन उसमें से आपने निकाल के अलग से एग्जांपल देनी होती है। बेटा जो होते हैं ना मार्क्स 100% तो लिटरेचर में नहीं आ सकते ना, जो आपकी जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं छोटी मोटी, वो आपके मार्क्स को जो है ना थोड़ा सा यहाँ से आगे 17 से आगे नहीं जाने देते। ठीक है, रिटर्न में हमेशा ऐसे होता है। हाँ, जो आपकी जो दूसरी होंगी असाइनमेंट्स वगैरह होगी, प्रेजेंटेशंस होंगी, सॉरी प्रेजेंटेशंस, वहाँ पे हम उन चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं होती। रिटर्न टेक्स्ट जो होता है उसमें ग्रामर की गलती एक भी हो तो वो पूरे के पूरे क्वेश्चन के ऊपर जो है वो चैलेंज हो जाती है। ठीक है, कोई एज सच आपका पेपर अच्छा था, बट इससे ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा आपको मजीद मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, यू कैन गो। आप मेरा आप बोले क्या सर नाम है? इंशाल्लाह। हाँ, क्या नाम है? सर राबिया कैनात। रेज नंबर बोले। 14। 14। यस सर। यस, रेज नंबर 14। राबिया, आपने लिखा जी, आपसे कहा गया जी एलिट्रेशन को डिफाइन करें। ठीक है, तो आपने लिखा द रिपीटिंग ऑफ कॉन्सोनेंट एंड सेम साउंड इन अ सेंटेंस इज एलिट्रेशन। आपने कॉन्सोनेंट एंड सेम साउंड क्या मतलब लिखा, इसका क्या मतलब हुआ? रिपीटिशन ऑफ सेम साउंड तो हो सकता है, आपने कॉन्सोनेंट लिख के उसको तो कॉन्सोनेंट्स कर दिया था, वो तो बात ही नहीं बनती। एसोनेंस जब आपने लिखा तो आपने लिखा जी एसोनेंस इज अ साउंड सिमिलैरिटीज इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सिमिलैरिटीज तो नहीं होते। मैंने क्या बताया था एसोनेंस का, उसकी डेफिनेशन देखें, कॉन्सोनेंस की डेफिनेशन देखें क्या लिखी हुई है, आपने क्या लिखी है, उसमें आपके मार्क्स नहीं है। सिमिलैरिटी ऑफ द साउंड इन द एंड ऑफ अ सेंटेंस, आप अपनी डेफिनेशंस को चेक करें ना, आपने क्या लिखा है, आपको याद है क्या लिखा है आपने? सिमिली एंड मेटाफर का मैंने बताया कि डिफाइन करें, उसके बाद एक्सट्रैक्ट करें। मैंने डिफरेंस पूछा था, तो जब आपसे डिफरेंस का पूछा गया तो आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने डिफरेंस ड्रॉ ही नहीं किया। यहाँ पे आपने सिमिली की बात की कि यूजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स इन अ सेंटेंस, क्या ये ऐसे हो सकता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस? तो वो ऐसे तो नहीं होता ना। मैंने तो आपसे पूछा था सिमिली एंड मेटाफर की डेफिनेशन, और फिर उसके बाद मैंने आगे पूछा था कि भाई उसको नीचे से एक्सट्रैक्ट करें, तो आपने एक्सट्रैक्ट तो नहीं किया उसको। उसके मार्क्स आपको मिल गए। मेटाफर लव इज अ सॉन्ग आपने लिखा, सिमिली लव इज लाइक द वॉइस, रिपीट, इसका तो मैंने दे दिया नंबर। लेकिन सिमिली और मेटाफर को आपस में आपने जो क्या कहते हैं उसको डिफरेंस था वो ड्रॉ करना था। आपने पहली बात ये थी कि आप उसकी बेस पे उसको डिफाइन करते हैं, ये सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, वो लिखा ही नहीं, आपने कुछ और लिखा हुआ है कि metaphor is not like simile. If we do not use the words like as etc in a sentence, for example, in Romeo and Juliet exclaim that you is not like the sun is like that Julio is a sun. This is not a metaphor. ओके सर। फिर उसमें आपने लिटरेचर की जब आपको बात की कि डिफाइन करें, तो आपने फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल लिटरेचर के बारे में बात की। तो लिटरेचर जो है वो स्टडी ऑफ पोएम्स एंड प्रोज तो नहीं है। लिटरेचर तो मैंने बड़ी अच्छी तरह बताया क्या चीज है, कहाँ से आप उसके वर्ड के ओरिजिन को, ये पूछे ना इसको सादिया बतूल को क्या लिखा है ओरिजिन, वर्ड के ओरिजिन की बात उसने की कि रिटन टेक्स्ट है, फिर उसमें उसने डिफाइन किया कि एक जो फिक्शनल है नॉन फिक्शनल है, उसमें फिर डिफरेंस बताया कि क्यों फिक्शनल है दूसरा नॉन फिक्शनल है। अब ड्रामा के बारे में पूछा जब, तो ड्रामा जो है उसके बारे में भी आपने इसी तरह की चीजें लिखी हैं। रोल सेटिंग, ड्रामा इज द कैरेक्टर थिंग्स थीम रोल सेटिंग
और द स्टेज परफॉर्मेंसेस। मैंने तो ये बात नहीं की थी। आई टोल्ड के भाई ड्रामा जो है वो स्टेज के लिए होता है, कहानी होती है उसके अंदर, पूरी डिटेल के साथ बताया था। लेक्चर्स रिकॉर्डेड भी दिए, उर्दू में भी रिकॉर्डिंग दी, लेकिन आपने उसमें उस तरह नहीं लिखा है। हाँ जी, और किसी ने पूछना है? सॉरी सर, इंशाल्लाह आगे अच्छा करूंगी। आगे कोशिश करनी है ना, ये तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी। मेहनत करनी है, क्योंकि मार्क्स आपको मेहनत करने पे मिलेंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं आपको अभी बता दूं। हाँ, नेक्स्ट किसी ने अपने पेपर का पूछना है? जमीला, आपने पेपर में क्या किया बच्चे? हाँ जी, पेपर की डिस्कशन हो रही है। किसी ने भी अपने पेपर के बारे में पूछना है तो पूछ सकता है, नहीं तो कल मैं आऊंगा यूनिवर्सिटी। अगर आप फिजिकली देखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। ठीक है, आगे एफर्ट करें, मेहनत करें। आप लोगों की ग्रामर के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेलिंग के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्पेलिंग वाली साइड पे भी आपके हालात अच्छे नहीं हैं। हाँ जी, GR ये अटेंडेंस नोट कर लें। ठीक है, अटेंडेंस नोट कर लें। क्लास के बाद फिर आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है मुझे, मैं आपको एक शीट भेजूंगा, उसके ऊपर बल्कि मुझे आपने पूरी अटेंडेंस शीट पिछली जो डिटेल भेजनी है, हमने कब कब क्लास ली, मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर लूँ। ठीक है, यस सर, मैं आपको भेज दूंगी। हाँ जी, बताएं जी, और किसने देखा पेपर अपना? रिजल्ट किस किसने देखा, बताएं, शाबाश। अगर आपने देखना है पेपर तो वही बात है कि मंडे वाले, सॉरी, कल आप आके देख सकते हैं। कल मैं जमा करा दूंगा। और ये दिस इज जस्ट अ मिड टर्म, दिस वाज जस्ट अ 20 मार्क्स पेपर, सो यू कैन पुट सम मोर एफर्ट्स टू इंप्रूव योर ग्रेड्स। अभी सिर्फ 20 नंबरों की बात हुई है, 80 मार्क्स आर स्टिल विद अस। ठीक है, क्लासरूम पार्टिसिपेशन, प्रेजेंटेशंस, अच्छा, असाइनमेंट्स, क्विजेस, एंड एट द एंड वी हैव द फाइनल रिजल्ट, फाइनल एग्जाम। सो अभी बहुत कुछ है आपके पास। ठीक है, और आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जो मिड टर्म होता है उसमें हमारे मार्क्स अक्सर बच्चों के वो वीक आते हैं, फिर उनको पता होता है कि हमने ऐसे पढ़ना है, ऐसे मेहनत करनी है, ऐसे इम्प्रूव करना है, और डेफिनेटली दे इम्प्रूव देयर ग्रेड्स, खुद ब खुद वो आगे तक जाते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, और किसी की कोई बात, किसी ने पूछना है पेपर का तो बताएं, नहीं तो फिर हम इसके बाद आपकी डिस्कशन की बारी है। स्टार्ट करें शॉर्ट स्टोरीज पे डिस्कशन। सर जी बच्चे। सर ज्यादा लड़कियों ने किस चीज पे मिस्टेक की है, यानी जो आपको लगता है कि हमें करनी चाहिए ज्यादा इम्प्रूव? देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मैंने अभी कुछ आपको इश्यूज बताए। सबसे पहली बात ये थी कि आप लोगों को बताया भी था कि सवाल को गौर से समझ के उसका आंसर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू आर आस्क्ड टू डिफरेंशिएट व्हाट मेक्स फिक्शनल लिटरेचर डिफरेंट फ्रॉम नॉन फिक्शनल लिटरेचर, तो आप वो वजह बताएंगे। वो क्या है कि एक इमेजिनेटिवली क्रिएट होता है और दूसरा जो है वो रियलिस्टिक होता है। एक जो पोएट की, राइटर की इमेजिनेटिव क्रिएशन होती है प्योरली। तो वो जो चीज थी, डिफरेंसेस ड्रॉ करने थे, बेसिकली आई वांटेड टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने में उस तरह लोग नहीं कर सके। आई वांटेड टू चेक द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आपके पास कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो आप ड्रॉ करें और उसको एक्सप्लेन करें उन चीजों को। मीन्स अब जैसे एसोनेंस कॉन्सोनेंस की बात की गई है, मैंने बताया भी, बार बार बताया कि एसोनेंस ये चीज होती है, कॉन्सोनेंस ये होती है, एलिट्रेशन ये होती है, और ये भी बताया कि यही चीजें आएंगी, इन्हीं में से आएगा डिटेल के साथ। ऑलमोस्ट आई हैव डिस्कस्ड द एंटायर पेपर विद यू बिफोर द एग्जाम, मैंने बता दिया था। और एक तो जो लास्ट वाला था, जैसे ड्रामा एंड इट्स काइंड्स, इससे रिलेटेड एक, ये जमीला को पूछे ना मैं पेपर में क्या किया है, आपको बता देंगी। जब पेपर में यानी कि कोई बात भी आप जब इररेलेवेंट लिखते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब जैसे एक बच्चे ने, जैसे आप लिखते हैं एलिट्रेशन जो है, दैट इज द रिपीटिशन ऑफ अ साउंड। ठीक है जी, रिपीटिशन है, लेकिन रिपीटिशन कहाँ पे एलिट्रेशन में? बिगनिंग में होती है। आप उसको लिखे ना बिगनिंग वाली, तो फिर रिपीटिशन सिर्फ बिगनिंग पे होती है, और वो कोई भी साउंड हो सकती है।
फिर उसी बात को आप दोनों दो दफा बोल रहे हैं, पहले कह रहे हैं रेपिटेशन ऑफ अ साउंड एट द बिगनिंग, और फिर आप बताते हैं साउंड इज रिपीटेड एट द बिगनिंग। इसको कहते हैं वर्डीनेस, एक ही बात को दो तरीकों से बयान करना। वर्डीनेस भी आपके मार्क्स डिडक्ट करने की वजह बनती है, ठीक है। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम थी। फ्रेगमेंटरी सेंटेंसेस आपने प्रोड्यूस किए, यानी कि सब्जेक्ट लिख दिया सारा, आगे अगला पार्ट मिस है, वर्ब है ही नहीं है, प्रेडिकेट पार्ट नहीं है, या प्रेडिकेट लिख दिया सब्जेक्ट मिसिंग है। इसी तरह ग्रामर के इश्यूज, स्पेलिंग की मिस्टेक्स जो है ना वो भी मौजूद है, उनको भी जब आप लिखने लगे तो तवज्जो के साथ लिखा करें, ठीक है। हाँ जी, और किसी ने पूछना है पेपर का? हाँ जी, पेपर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? हम अगली क्लास इंशाल्लाह हम बुध वाले दिन रखेंगे, ठीक है। बुध वाले दिन हम आगे पढ़ेंगे। आज अभी आप लोगों की डिस्कशन का टाइम है, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो since you got your result, and I'm sure most of you are not happy at your results, but this is what the true picture, ठीक है। or this is better that I would show you a true picture instead of keeping you in a darkness at the end. What will happen that when you will be appearing in any other exam, so that will be another failure. उस वक्त फिर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। कि अगर आपको इस वक्त स्टार्ट में अगर आपको खुले मार्क्स दे के आगे भेज दिया जाए कि ठीक है जी खुले मार्क्स ले रहे, और आपने जनाब बस ओ जी बहुत अच्छा जी मार्क्स ही मार्क्स आ रहे हैं, एंड पे ये होगा कि व्हेन यू विल बी सिटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पे तो वो यही तो चीज टेस्ट होती है, कौन किस मयार का पढ़ क्या है। मार्क्स तो आपके पास बहुत होंगे लेकिन आपको आता कुछ नहीं होगा, और बाकी लोगों से आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए जो ट्रू पिक्चर होती है, उस्ताद जो ट्रू पिक्चर दिखाता है वो ज्यादा बेहतर होती है, बजाय इसके कि आपको धोखे में रखा जाए और एंड पे जाके आप उस डिग्री को सिर्फ कागज के टुकड़े की हद तक समझें। मरियम, आपका पेपर मेरी आंखों के सामने है। एक ही बात आपने लिखी, आपके पेपर के अंदर वही वर्डीनेस आपके पेपर के अंदर ही है। अलिटरेशन रेफर्स टू द सेम साउंड दैट अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। अब इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, सिंपल ये सारा आपने 3.5 लाइनों में अलिटरेशन को डिफाइन किया, बट इट वाज जस्ट दिस दैट अलिटरेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड। आपने फिर दूसरी दफा उसी को लिखा, सेम साउंड्स ऑफ वर्ड्स रिपीटिंग एट द बिगिनिंग इज रेफर्ड एज अलिटरेशन। फिर इसी तरह एसोनेंस में भी यही काम हुआ, सिमिलरली यही रेपिटेशन आपने की। कॉन्सोनेंट्स में आपने जो है वो अच्छा, कॉन्सोनेंट्स में आपने कॉन्सोनेंट साउंड की बजाय वॉल साउंड्स को, हा जो है बेसिकली सेमी वॉल है, ही गिव्स, ये सारा बेसिकली एच ई, अगर आप ई को वॉल को कर रहे हैं, जो अंडरलाइन किए हुए वो गलत थे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आपके मार्क्स ठीक थे, यानी उसमें you got 3 out of 4, but again वही बात आ जाती है कि वहां पे भी आप इसको नहीं लिख सकते। लव इज अ सॉन्ग दैट नेवर एंड्स लाइक द वॉइस ऑफ एमिली कॉयर। तो इसमें आपने मेंशन नहीं किया कि ये सिमिली है, ये मेटाफर है। उसके सामने बाज बच्चों ने बाकायदा लिखा है दिस इज सिमिली, ये वाला जो है, एंड दिस इज मेटाफर, ठीक है। अब आगे जब आपने लिटरेचर को डिफाइन किया तो आपने लिखा लिटरेचर इज पार्ट ऑफ इंग्लिश, कंटेन्स राइटिंग ऑफ स्पेशल टॉपिक्स। नो, लिटरेचर क्या है, उसकी एटिमोलॉजी क्या है, वर्ड क्या है, आपने वो लिखना था। लिटरेचर पार्ट ऑफ नॉट इंग्लिश, व्हाट इज दिस, ये क्या आप लिख रहे हैं, लिटरेचर पार्ट ऑफ अंग्रेजी का हिस्सा है, इससे क्या सेंस पैदा होता है, मुझे तो कोई समझ नहीं आपने क्या लिखा इसमें। उसके बाद आगे जो ड्रामा वाला था दैट वाज अ बिट बेटर, ठीक है। उसके अंदर फिर मैंने आपको जो
गुंजाइश थी उधर से अब मैंने आपको कवर किया, ठीक है। तो हाँ जी, समझ आ गई मरियम? हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है तो प्लीज बताएं, डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करा दी है ना? Yes, sir. यस सर। ओके, तो इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट evaluating your assignments and now this is your time, ठीक है। we are going to start the discussion। अपना अपना ग्रुप निकालें जी, कौन सा ग्रुप पहले आएगा? शॉर्ट स्टोरी अपनी निकालें और स्क्रीन शेयरिंग जो है वो आप कर सकते हैं। मैं इसकी सर जी बोलें। सर सब बच्चियां कह रही हैं कि प्रिपेयर नहीं किया हमने, ये क्या बात क्योंकि है? वेडनेस सर हमने समझा था कि वेडनेसडे को हमारी क्लास होगी आपके साथ, तो तभी हमने डिस्कशन करनी है। मैंने तो पहले की वो क्लास आपकी रखी हुई थी, वेडनेसडे वाली तो बात ही नहीं है इसके अंदर। मैंने तो बताया था, याद करें ना, मैंने तो बताया था कि मंडे वाले दिन जो पहली 2 क्लासें हैं, मंडे वाली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में हम जो है वो पढ़ेंगे। सर किसी ने प्रिपेयर ही नहीं की हुई। वेट करें, मैं आपको दूसरा लेक्चर देता हूँ। हम इस पे फिर एक रिकैप करते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज के एलिमेंट्स पे बात करते हैं थोड़ी सी, और यस आई एक्सपेक्ट कि अभी आपको मजीद इस पे क्लैरिटी हो जाएगी। जब आप अगली क्लास के लिए तशरीफ लाएंगे तो सो यू विल बी, यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। आई एम गोइंग टू शेयर Sir, next class कब है? वेडनेसडे को। Okay, so we are going to talk about the elements of short stories. Again, we are going to have a recap. Rather, we are going to discuss some important elements. This time, I'm going to share a PowerPoint presentation with you so that we should, when you are going to write your review, okay? As I told you, that first you will come for the discussion in groups, and after that discussion, you have to write your assignment, and each student has to write her own assignment, okay? And no one's ideas should match with each other, means no one's text should match with each other. In any case, you are not allowed to match, okay? Copied pasted material, even if that is a paragraph, that a single paragraph, even then, ठीक है, एक पैराग्राफ भी अगर मिला तो वो पूरे का पूरा आंसर जो है आपका पूरी असाइनमेंट जब उसको, that will be considered as null and void because you did not write it at all, someone else wrote for you. So that practice is not allowed since you are going to learn. So you have to learn at your own. You have to put all of your efforts to learn these things. Otherwise you won't be understanding. So look at the first thing, that is the setting. That when we are going to look at the setting,
setting, when we talk about that, I've just highlighted one short story here. The name of that short story is Changes. I'm not going to talk about that. When you are going to discuss, yes, please ask question. आप पूछे बेटा. सर ये जो आपने हमें शॉर्ट स्टोरीज दी हैं ये हमें कहाँ से अवेलेबल होंगी? गूगल पे अगर हम सर्च करें तो क्या आ जाएंगी? बिल्कुल मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा. शॉर्ट स्टोरीज भी मिलेंगी, मटेरियल भी इस पे मिलेगा, हर चीज मिलेगी इसके ऊपर, हर चीज मिल जाती है. Look at the first one. When you are going to read that short story, you are going to look at its setting. So setting क्या चीज है, मैं अब मजीद उसको इसलिए रिकैप करूं बिकॉज सेटिंग नॉवल के अंदर भी देखी जाती है, सेटिंग शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी देखी जाती है. शॉर्ट स्टोरी इज shorter than novel. It deals with one incident. It deals with limited characters, quite less number of characters. So when you are going to look at the setting, माहौल, ठीक, एटमॉस्फेयर देखेंगे आप, प्लेस, टाइम. अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेदर कंडीशन, सोशल कंडीशंस, मूड और एटमॉस्फेयर, ये भी आपको पता चलता है. इफ आई टॉक अबाउट द किलर्स, हैं, द वन दैट इज द पार्ट ऑफ योर कोर्स, दैट इज द पार्ट ऑफ योर डिस्कशन. आपका कोई एक अगर मैं उठा लूं, उसमें प्लेस की बात भी होगी, टाइम की भी, वेदर कंडीशंस भी बताए जाएंगे. Means when you are going to read that short story, look at these things, look at the screen, note down these points. You are going to look at these points, you are going to trace these points and note them down where the place where there you are going to discuss the setting. किस प्लेस पे है, टाइम पे, बुलेट्स में बेशक लिखते हैं, मुझे पता चले that you have read the short story and you saw these elements over there. If you saw, you have extracted this is a place, this is a time. If you found any type of weather conditions being described there, tell कि ये इन अल्फाज के जरिए पता चलता है कि यहाँ पे वेदर कैसा था, रात का वक्त था, दिन का वक्त था, सुबह का वक्त था, शाम का वक्त था. सोशल कंडीशंस, किलर्स के अंदर किस तरह की सोशल कंडीशंस है, एटमॉस्फेयर कैसा है, हॉरर की सी एटमॉस्फेयर क्रिएट की गई है. सोशल कंडीशंस क्या है, जंग लगी हुई है या अमन है, लड़ाई चल रही है, शादी हो रही है, क्या हो रहा है. So this is all what the setting is created through these things. So writer कभी भी आपको बोल के नहीं बताता, लिख के नहीं बताता कि ये माहौल है, but you have to extract after reading it. You have to extract कि यार इसके अंदर ये चीज, ये क्या है इसके अंदर, ठीक है. Then comes another element, the conflict. I gave you the detailed material and I'm sure that you will be reading it. You have to see the struggle. You have to find out the struggle that is going on in these stories. Rather, that is a struggle between man and nature. ठीक है, man and animal. किसके दरमियान लड़ाई है, बड़े छोटे की है, अच्छे और बुरे की लड़ाई चल रही, मतलब क्या हो रहा है उसके अंदर, क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कौन सी जिद्दोजहद चल रही है. So you have to trace it. You have to find it out. अगर नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट तो मेंशन करें. If you are unable to find out the conflict, online sources are available. Find it, trace के conflict in this, क्या कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर, ढूंढें. आपने स्टोरी पढ़ ली, देन ट्रेस इट, वहां से ढूंढें, पता चलेगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इसमें ये वाला है. ठीक है, हाँ जी, बात समझ आ रही है? क्यों जी, मेरी बात का कुछ असर पड़ रहा है या खामोश है, या रिजल्ट सुन के खामोश हैं? सर आ रही है समझ. आज रिजल्ट की वजह से कितने लोगों ने भूख हड़ताल की हुई है? हैं? बताएं जी. सर बिल्कुल नहीं की क्या, 4 समोसे खा के आई आप? नो सर. 1 समोसा खाया? सर सिर्फ खाना खाया. बस ठीक है, खाना शाना खाना है, टेंशन नहीं लेनी, मेहनत करनी, आगे एफर्ट्स करनी है, ठीक है ना, जोर लगाना है. समझ आई ना बात? ओके, यस सर. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ. जी बोलें. सर वो जो आपने गूगल क्लासरूम का कोड शेयर किया था वो गलत था. वो एक लड़की का वो एक लड़की का था? सर उसको देना था. कौन सी लड़की को देना था? वो शर्माती है मुझसे पूछते हुए. सर वो जमीला, उसकी सर क्लास गूगल क्लासरूम पे लिटरेचर शो नहीं हो रही, इसलिए उसकी असाइनमेंट भी नहीं सबमिट हुई.
जनाब मैंने कोड दिया, आप जमीला से, जमीला बोलती भी नहीं है ना, जमीला मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लास नहीं लगाती है, वो आपको वैसे वो लग रहा है। शी कम्स एंड शी जस्ट शी व्हाट आई सी दैट शी जस्ट कम्स, लॉग्स इन एंड देन शी लीव्स। उसने क्लास कोई भी नहीं लगाई। अभी भी देख लें, जमीला इज हियर बट शी इज नॉट अटेंडिंग द क्लासेस। सर उसका गला खराब है। हाँ, उसका गला अभी नहीं, हर दफा खराब होता है। आप उसका ईमेल भेजें मुझे, मैं इसको इधर इधर मुझे वो करे, मैं उसको वो सेंड कर, मैं अभी इनविटेशन लिंक यहाँ पे शेयर कर देता हूँ इधर यहाँ पे चैट के अंदर। जमीला का गला नहीं खराब, ये इसी तरह है जमीला। ये ले, अभी मैंने ये इनविटेशन लिंक शेयर कर दिया, देखें। आई रिकॉर्डेड द लेक्चर्स, ठीक है ना, और मुझे पता है कि वो जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए थे ना, कि किस किसने उन लेक्चर्स को अच्छी तरह सुना है। अब वो 3-4 बंदे हैं जिन्होंने सुना है, उनके मार्क्स भी ठीक हैं। जिन्होंने नहीं सुना उनके मार्क्स भी, फिर उनके हालात यही हैं। मैंने उस वक्त बोला था कि बेटा आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप भुगतेंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इन द एंड टर्म एग्जाम यू आर गोइंग टू एनालाइज अ पोम, कंप्लीट पोम, और ये सारे एलिमेंट्स आप वहां पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये एसोनेंस, कॉन्सोनेंस, पैराडॉक्स, सिमिली, मेटाफर, यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दीज एलिमेंट्स। उस वक्त क्या होगा, बिकॉज वहां पे ये 10 मार्क्स की होगी, 50 मार्क्स का पेपर है। अगर इफ दैट इज 50 मार्क्स पेपर, देन यू विल बी हैविंग 10 मार्क्स ही। हाँ बोले जी रच, बोले। सर ये हमें कैसे बात पता चलती है कि इस पोएम में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं? जो है वो आपको नजर आ जाए, जैसे भी एलिट्रेशन मैंने आपको बताई है, देखें कि ये कैसे नजर आई आपको। सर हमारा कोर्स रिपीट सर होगा चलिए एलिट्रेशन, एसोनेंस वगैरह तो नजर आ जाती है, बट ये मेटाफर जो होता है ये बहुत अजीब सा होता है, ये तो पता ही नहीं पता चल चलता। जाता है ना, पता चल जाता है, सिमिली पता चल। कोर्स नहीं रिपीट होगा बेटा, कोर्स कैसे रिपीट करेंगे? कोर्स तो मैंने आपको बहुत ज्यादा पढ़ाना, रगड़ा देना है ठीक ठाक। अभी प्रैक्टिकल करवाने हैं सारे, आपसे प्रेजेंटेशंस करवानी, उसमें टाइम काफी सारा लग जाएगा। रिपीट तो नहीं करेंगे हम, लेकिन पोम का एनालिसिस आपको मिलेगा, ड्रामा का टेक्स्ट उठा के दूंगा, एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। और इसका नॉवल का टेक्स्ट उठा के दूंगा, एनालिसिस करवाऊंगा। एक एलिमेंट दे दूंगा इसमें से, ये ढूंढ के दिखाएं। सर जी जी बच्चे। सर एक सजेशन दूं, जी जैसे हमारी शायद ये अच्छी हो एबिलिटी एनालिसिस की, सर आप हमें एनालिसिस के लिए देते रहा करें हर क्लास में कुछ ना कुछ छोटा बहुत मटेरियल। उसी से आप सीखेंगे। लिटरेचर तो वैसे नहीं सीख सकते आप भी, फिर तो ये इसी तरह याद करते रहेंगे। अभी भी याद करके सारा कुछ सर इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर हमने ऐसे ना किया तो फिर हम फाइनल्स में तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तभी तो मैंने कहा है कि आप शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, ढूंढेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये एक चीज पढ़ेंगे, ढूंढेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर आप सीख जाएंगे, स्किल्स आपके पास बन जाएंगी। उसके बाद अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी का कोर्स पढ़ाना पड़ा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको पता होगा कि दीज आर द बेसिक्स, ठीक है। फिर बाकी चीजें खुद ब खुद आप देखेंगे। Okay, let's go towards the conflict. Kinds of conflict. The first conflict is that is external conflict. As we have discussed before, that there should be a struggle between two forces in a story, and you can see the external conflict, human versus human. That is, and another one that is external, that is human versus nature. Then human versus society. Then there is an internal conflict as well, man versus self. आपके दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एक जो आपको सामने नजर आता है, इंसान, एक बंदा सोसाइटी से, फितरत से या साथ दूसरे इंसान से उसका जो है ना कोई तनाजा चल रहा है, और एक उसका अपने वजूद के साथ, अपने अंदर के साथ का तनाजा, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक्सटर्नल तो आपने अपनी आंखों से, यू हैव सीन इट, people struggling against nature, people struggling against society, people struggling against other fellow. हाँ सादिया पूछें बेटा, हाथ खड़ा किया आपने, पूछे ना या खामोश हो गए? सर मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने कहा है कि पूरी पोएम आपको दी जाएगी एनुअल में, शायद आपने कहा है ना? जी जी। तो सर ये जो मिड टर्म का सिलेबस है ये एनुअल में क्यों आएगा? मिड टर्म के साथ पोएम का एनालिसिस आएगा ना, पूरी, बाकी तो नहीं आएगा सारा कुछ। मिड टर्म का कुछ सिलेबस आता है ना। बेसिकली हमने उसके अंदर जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव करने हैं सारे। एनालिसिस तो मैंने आपको अभी तक दिया नहीं ना। ऑब्जेक्टिव्स में क्या, इंट्रोडक्शन टू पोएट्री, इंट्रोडक्शन टू ड्रामा, इंट्रोडक्शन टू नॉवल, इंट्रोडक्शन टू शॉर्ट स्टोरीज, इंट्रोडक्शन टू
एसेस। तो एनालिसिस तो सबका करवाऊंगा, नहीं तो आप कैसे फरार हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, आप डॉज दे के निकल जाएंगे। निकलने तो नहीं देंगे ना। भागने नहीं दिया जाएगा आपको, इतने टेस्ट आपके लिए जाएंगे, इतने प्रैक्टिस करवाई जाएगी ताकि व्हेन यू लर्न literature further, then you are provided with any piece of literature to evaluate, to analyze, to extract anything, so you are good enough to do that. ठीक है, okay. External conflict तो आपने देखा. Internal conflict, can you think about anything related to this man versus inner self, या self से related किस तरह का conflict होता है? कोई बता सकता है? मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरी जिंदगी से बनी नहीं है। कभी सुना है ये लफ्ज, ये शेर? मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरी जिंदगी से बनी नहीं। External conflict you can see, you can when you are reading a short story, when you are reading fictional or non-fictional story, in both cases you can see it through you will read, you will experience it, but in that case you will never see this person is facing any sort of conflict. ठीक है, होता क्या है इसके अंदर कि इंसान जो है वो, जैसे ये लोग जो लोग खुदकुशी करते हैं, अपने आप को मार देते हैं, क्या मसला होता है? उनके वजूद के अंदर एक जंग जारी होती है, जिस जंग से वो शिकस्त खा जाते हैं। अगर वो अपने वजूद के अंदर मौजूद उस जंग को जीत जाएं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में वो यानी कामयाब हो जाते हैं। अगर वो हार जाएं तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। सिमिलरली ये इनर सेल्फ की क्या, अब इसमें मैं आप उसको फर्दर एग्जांपल देता हूँ कि These are basically internal motives. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, ये इनर कॉन्फ्लिक्ट ही बंदे को कुछ ऐसे काम करवाता है। डॉक्टर फास्टस के अंदर you have discussed this play when we were having face-to-face classes, that was based on internal conflict, कि वो कहता है मैं शैतान की तरफ जाऊं या खुदा की तरफ जाऊं। उसके वजूद के अंदर एक जंग लगी हुई है। वो जब हम कहते हैं ना ज़मीर आपको मजबूर करता है रिश्वत लूं या ना लूं, तो वो इंसान का अंदर उसको कहता है, और अगर वो जीत जाता है तो वो ले लेता है, हार जाता है ज़मीर की मानता है तो वो नहीं लेता, ज़मीर की नहीं मानता तो वो ले लेता है। दिस इज व्हाट अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, अंदर जो जंग लगती है। देन यू कैन सी प्लॉट कंपोनेंट्स। कहानी कैसे आगे बढ़ती? जी बोले बेटा। सर गर्ल्स कह रही हैं कि इस वीक हमने ड्रामा वाली असाइनमेंट करनी है, तो शॉर्ट स्टोरी वाली नेक्स्ट वीक करेंगे ना? फिर शॉर्ट स्टोरी नेक्स्ट वीक में आपने जमा करवानी है, इस वीक में तो आपने डिस्कशन करनी है ना। सर इस वीक में तो लड़कियों की ड्रामा वाली कंप्लीट होगी ना? बिल्कुल बिल्कुल, इस वीक में ड्रामा वाली कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट वीक में शॉर्ट। लेकिन ड्रामा डिस्कशन शॉर्ट स्टोरी की होगी, ड्रामा की आपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और सबमिट नेक्स्ट वीक करवानी है। हाँ, सबमिट नेक्स्ट वीक करवानी है। सर डिस्कशन में हमने स्क्रीन कैसे शो करनी है, मतलब हमने क्या दिखाना है? जो आपने लिखा हो वो शो करेंगे, स्क्रीन शेयरिंग करेंगे आप। ओके सर। अच्छा, अब आप इसमें देखें, आई एम जस्ट शोइंग यू माय हैंड आउट रिलेटेड टू दिस वन। प्लॉट कंपोनेंट्स हैं। प्लॉट की जब आप बात करें तो मैंने पहले बात की कि कहानी कैसे बयान की, हाउ द राइटर has created the story. So the first is exposition, the start of the story, that how it starts means before the action क्या हुआ। कहानी में एक सबसे पहले होती है exposition, what happened before the action, settings identify की जाती है, main characters, उनकी position, circumstances, ठीक है, relationships with one another they are established, existing forces introduce होती है, narrative hook introduce होता है, then there is a rising action, conflicts पैदा होते हैं। जैसे स्टोरी के अंदर एक ही कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, शॉर्ट स्टोरी के अंदर, उसके अंदर ज्यादा कहानियां होती हैं, ज्यादा इवेंट्स होते हैं उसके अंदर। नॉवेल के अंदर when we'll be discussing novel, we'll be discussing this diagram once again।
विद इन दैट पर्सपेक्टिव के प्लॉट वहां पे कैसे बन रहा है। देन देयर कम्स क्लाइमेक्स, मैंने क्लास के अंदर भी इसको ड्रॉ करके बताया था। टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे इंटेंस मोमेंट जो है उसका वो या तो मतलब वो एक्सपोज हो जाती है सारी की सारी, सारे का सारा क्रूशियल जो पॉइंट है, दैट इज व्हाट द क्लाइमेक्स, ठीक है। और उसी वक्त वो एक ऐसा मौका था जहाँ पे जो द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज टेकिंग अ क्रूशियल डिसीजन एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्ट्स इनटू द कैटास्ट्रॉफिक एंड, तबाही की तरफ जाता है। अब ये जो स्टोरी है, दैट कैन बी, this can be in a short story, this can be in a long story, but you must have some point with you ना, कि आपने उसके ऊपर बात की, शॉर्ट स्टोरी में बात की, आपके पास भी पॉइंट है। देन फॉलोइंग एक्शंस, कि सारे का सारा एक्शन जो है वो क्लाइमेक्स को फॉलो करता है, फिर रेजोल्यूशन होता है। इसके बाद क्या हुआ, कहानी के बाद क्या हुआ, ठीक है, कि कहानी खत्म। ये कहा देखें, यहाँ आप स्क्रीन के अंदर देखें तो ये एक्सपोजिशन कहानी से पहले की बात है, रेजोल्यूशन कहानी के बाद की बात है। ये जैसे ऊपर जैसे जैसे कहानी बढ़ती है पीक तक जाएगा और उसके बाद एकदम से नीचे आके गिरेगा। बाज दफा ऐसे होता है, बाज दफा नहीं होता। जी डिस्कशन के मार्क्स हैं और वो मैं नोट करूंगा, क्लासरूम पार्टिसिपेशन के खाते में डिस्कशन के मार्क्स काउंट किए जाते हैं, ठीक है। ओके जी, देन कम्स कैरेक्टर्स। अच्छा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, very very important, characters. Why this is important? Because characters make the story ना, characters के बगैर तो कहानी नहीं बनती, ऐसा ही है। इसमें एक जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है स्टोरी का, यू हैव टू लुक एट दैट कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द कहानी घूम रही है, उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। और जितनी ताकतें उसके खिलाफ चल रही होती हैं उनको हम एंटागनिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे फिर मैंने एग्जांपल रखी कि आप इसको देखें और इसके हिसाब से आप आगे चल सकते हैं। यहाँ पे दिस इज जस्ट अ स्टोरी रिलेटेड टू अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है, चेंजेस उसका नाम है। उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट ये है और फिर पुलिस ऑफिसर दे आर एंटागनिस्ट। तो आप भी ढूंढे कि कौन से हैं आपकी स्टोरी के अंदर। अच्छा, कैरेक्टर्स आर the stuff for characterization. Characters are the stuff for characterization, है ना। Characterization क्या चीज है? ये this is the information that you receive about the characters, ठीक है, फ्रॉम द आथर। आथर किस तरह किरदारों को रिवील करता है, कैसे अपने किरदार आपके सामने लेकर, हाउ ही एक्सपोजेस। यू विल लुक एट डिफरेंट कैरेक्टर्स इन अ शॉर्ट स्टोरी, इन अ लॉन्ग स्टोरी, ठीक है। देयर विल बी सम मेजर कैरेक्टर्स, सम माइनर कैरेक्टर्स। आपको उसके बारे में क्या पता चला और कैसे पता चला? आपको उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता है, ठीक है, आपको उसकी फीलिंग्स, ड्रीम्स, वो क्या करता है क्या नहीं करता, जब आप कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है। इसको हम इस तरह समझते हैं कैरेक्टराइजेशन को। मैं थोड़ा सा मजीद आपको समझा देता हूँ। सिंस आई कम टू योर क्लासेस, आई टीच यू, ठीक है। आप एक रियल लाइफ स्टोरी को इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर, मैं रोज आता हूँ, once a week I come and I take your class and then I leave. This is the activity that I do at Fatima Jinnah University. But you have got some opinions, what you perceive from me. जी वो देर से आता है, वो जल्दी आता है, वो किस तरह के कपड़े पहनता है, वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, किधर बैठता है किधर खाता है, ब्रेक टाइम किस वक्त करता है, वो मीन्स कि what I do there, what is you can say what is my way of teaching. जो भी चीज आप वहां पे मुझसे रिसीव करते हैं वो that is related to my character. तो जब आप मेरे बारे में बयान करना शुरू करें तो बेसिकली you are going to analyze my character, you are going to jump into characterization. कि आपको मेरे साथ इसके अलावा तो कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये तो नहीं है कि मैं शाम के वक्त में दूध बेचता हूँ तो आप मुझसे दूध लेने आते हैं, सुबह के वक्त में गाड़ियां ठीक करता हूँ तो आप अपनी गाड़ी मुझसे ठीक करवाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना।
सो कैरेक्टराइजेशन में मेरा जो किरदार है, इट इज सेम लाइक अ स्टोरी, ठीक है। इसमें इस कहानी के अंदर फातिमा जिना के अंदर जो आपकी कहानी चल रही है, आप जो पढ़ रहे हैं मुख्तलिफ टीचर्स के पास, सो आपकी हर एक के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, तो आप उसके साथ कैसे, उसको कैसा पाया आपने, दिस इज हिज और हर कैरेक्टर। सो यू कैन राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन डिफरेंट उसमें, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजिशन की बात हम करते हैं कि स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, since when you are given with a short story to evaluate, to analyze, to discuss, so you have to talk about that, the start of the story, कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हुए, एक हुआ, राइजिंग एक्शन मतलब एक या ज्यादा है, इंटेंस मोमेंट कौन सी है, उसके बाद क्लाइमेक्स के बाद क्या एक्शन हुआ, फिर कंक्लूजन का कहानी कैसे खत्म हुई, कि वो जो आते हैं और वो वापस चले जाते हैं, वो जो होते हैं किलर्स, वो आते हैं वापस चले जाते हैं, क्या करते हैं, मारते हैं नहीं मारते, पीक पे क्या होता है जब वो उसे पता चलता है उसको मारने आ रहा है तो वो क्या फैसला करता है। सो यू हैव टू फाइंड आउट दीज थिंग्स। I know that you are very beginner, you are just at the start of learning English, learning literature, so I don't suggest कि भाई आप अभी फौरन खुद से लिखना, I don't expect that you will start writing at your own, so you can have an access to online sources, ढूंढें आप वहां से चीजें, ideas वहां से निकालें, read the short story, get the idea from the online sources and then write it at your own, ठीक है। आपने वो ढूंढा निकाला, योर एफर्ट्स आर डेफिनेटली दे आर कमेंडेबल, कि आप उसको ढूंढ के कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं, हाउ यू कंपोज इट, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सादिया बोलें। सर फाइजा पूछ रही है कि डिस्कशन उर्दू में कर सकते हैं। It is better that you should participate in you should have a discussion in English language, but if you can't then थोड़ा सा आपको मिलेगा मौका, ज्यादा नहीं। हाँ जी, then comes point of view. So कहानी कैसे बताएगी, you have to see first person में है, stream of consciousness है, omniscient है, sometimes stream of consciousness होता है कि वो जिसको हम कहते हैं कि कहानी को यानी कि किसी भी किरदार के दिमाग के अंदर कैमरा लगा के वो राइटर बताता है कि इसके दिमाग के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। द फ्लाई जो स्टोरी है, द फ्लाई, उसके अंदर एक जगह पे आपको पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा, अगर आपके मेरे ख्याल में किसी को मिली है कैथरीन मैन्सफील्ड की स्टोरी है द फ्लाई, उसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एलिमेंट मिलेगा, ठीक है, कि वहां पे वो सोचता है और वो फिर उसको अपने बच्चे को याद करना शुरू कर देता है और फिर वो भूल जाता है उस गम को। सो वो एक छोटा सा एलिमेंट उस स्टोरी विद इन अ स्टोरी आपको नजर आएगा कि दिस इज व्हाट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एलिमेंट, के राइटर जो है बंदों के दिमाग में वो लगाता है, कैमरा लगाता है। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन? सर छुट्टी किस टाइम होगी? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। आपकी 4 बजे क्लास शुरू हुई है, 5:30 तक तो वेट करें ना जी। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स टॉक अबाउट दैट। द स्टोरी इज टोल्ड बाय द प्रोटैगनिस्ट और वन ऑफ द कैरेक्टर्स who interacts closely with the protagonist or other characters. रीडर जो है वो स्टोरी को
दूसरे की, एक होता है वो खुद बताता है ना, तो फर्स्ट पर्सन में क्या है, प्रोटैगनिस्ट के जरिए या किसी और किरदार के जरिए बता रहा होता है, जो स्टोरी राइटर जो है, जैसे प्रोनाउंस को इस्तेमाल करता है, आई, मी, वी, इस ये प्रोनाउंस इस्तेमाल करके, या वो उस एक मतलब किसी एक बंदे की उससे नुक्ता निगाह से सारी कहानी बयान करता है, ऐसा लगता है कि वो भी क्या कहते हैं, ही इज द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है। देन ओमनिसेंट, स्टोरी टेलर नोज अबाउट द फैक्ट्स अबाउट द कैरेक्टर्स, ये ओमनिसेंट है, साइड पे खड़ा हो गए। ओमनिसेंट में फर्स्ट पर्सन में ये होता है कि ही इज द पार्ट ऑफ अ स्टोरी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, वहां पे वही होता है। लेकिन ओमनिसेंट में क्या है, नैरेटर में ये साइड पे खड़ा है, कहानी इससे मुतल्लिका नहीं है। देन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में इनसाइड हेड ऑफ वन कैरेक्टर नोज दैट ऑल देयर थॉट्स एंड रिएक्शंस, मैंने भी आपको जैसे बात बताई, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ठीक है, क्या हो रहा है दिमाग में, चावल पक रहे हैं, बिरयानी पक रही है, या छुट्टी की यादें आ रही, जो कुछ पक रहा है उसको देखा जाता है, ठीक है। देन थीम, नेक्स्ट एलिमेंट, ठीक है, द कंट्रोलिंग आइडिया, सेंट्रल इनसाइट, व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्टोरी, द किलर, द नेकलेस, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, द वन दैट इज असाइन्ड टू यू, लुक एट दैट, क्या कहानी क्या बताता है ये, इसके अंदर क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। Means you are going to look at the purpose of the story, what's going on in it. If they are talking about the killers, so what they do, what is the theme, ठीक है, और इसके अलावा उसके अंदर और क्या मीनिंग, आपको आप इस कहानी से क्या मतलब अखज़ करते हैं। देखिए, जैसे एक बंदा कहानी सुनाता है, अपने इलाके की, अपने खित्ते की कहानी सुनाता है, वहां वो शादियों की बात करता है, वो एक शादी के इवेंट के बारे में बताता है, तो हम उससे खुद अंदाजा लगा लेते हैं कि वहां पे लोग जो है वो, वहां से एक मीनिंग निकलता है कि इस इलाके के लोग जो है वो दिखलावे के बहुत शौकीन हैं, खुद से आप मीनिंग निकाल लेते हैं, वहां कहीं लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि क्योंकि वहां लोग इस तरह मतलब है शादियों पे इतना खर्चा करते हैं, फलां करते हैं, डिमकां करते हैं, कोई एक इवेंट आपको बताया गया। इसी तरह आपने स्टोरी पढ़ी तो स्टोरी सामने थी द ग्रीडी डॉग, लेकिन उसके पीछे आपने खुद थीम निकाला, ग्रीड इज कर्स, खुद उससे आपने उसका मीनिंग जो एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। So that's all about this topic, and I hope that you have got a very clear idea related to the short stories and the elements of short stories. मैंने मजीद भी इसके बारे में बता दिया है, तो अभी आपके कोई क्वेश्चन, कोई डिस्कशन जो आपने करनी है, कुछ पूछना है उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट भी बताता हूँ, वेबसाइट कह रहा हूँ वो बताता हूँ। When you are going to look at these things, when you are going to extract the material, there is when you are going to read, ये मैं आपको दिखाता हूँ जी स्क्रीन ना, देखें, since you are going to read the short story, so you are going to face certain problems. You can see my screen now. मुझे उनका ईमेल एड्रेस देना, उसका जमीला का, तो मैं उसको इधर भी ऐड कर देता हूँ। शी डिड, अच्छा, शी हैज फाइनली जॉइन्ड द क्लास, आ गई हैं कहीं पे, 19 मेंबर्स हो गए हैं, पहले 18 थे, एक बंदा 2 दफा भी आया हुआ है ना। अच्छा, देखें यहाँ पे एक वेबसाइट है lingro.com, मैंने शायद आपको पहले भी बताया था, इसका बताया था ना। यहाँ पे आप आए, if you are going to read the story The Killers, ये शॉर्ट स्टोरी है द किलर्स बाय हेमिंगवे। मैं वैसे एक बंदे की वो एक समरी वाला एक मैंने लिंक निकाल लिया है, मेरे पास थोड़ा सा उल्टा सीधा आता है, कोई ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का इशू है। मैं वेबसाइट खोल के बैठा हूँ,
आप ऑनलाइन सोर्सेज पे किसी चीज को पढ़ते हैं, यू हैव जस्ट ओपनड इट, ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आ गए हैं। मिसाल के तौर पे ये स्टोरी मैं यहाँ पे पढ़ने लगा हूँ और मैंने इसको क्या किया, इस लिंक को मैंने उठा के इस वेबसाइट पे छोड़ दिया, lingo.com का। ये दिस इज इट्स सर्च इंजन। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप स्क्रीन, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा और मैंने इसे कहा कि इसको ढूंढ के दो। ये एक ऐसी डिक्शनरी है, इसने पूरे के पूरे उसको वेबसाइट को ही निकाल के दे देना। अब इस वेबसाइट में प्रॉब्लम है, कॉपी मैं कोई और वेबसाइट आपको मिसाल के तौर पे ये मैंने खोल लिया है, जस्ट लुक एट दिस वन, ठीक है। आप भी उस पे कंप्यूटर पे जाएं, lingo.com को इसी तरह ये लगाएं, lingo.com के पास ये आ गया। ये मैंने एक वैसे एक पेज खोला है ना, इस पे तो ये ऑडियो में है सारी। फॉर एग्जांपल मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, इसने मुझे सारा खोल के दे देना है। यहाँ पे पूरी वेबसाइट खोल के देनी है। वेबसाइट खोल के मैं वहां पे वर्ड्स के मीनिंग को निकालूंगा। इसने यहीं पे मुझे सारा कुछ बता देना है। ये देखो ये आ गया है, क्लिक करूंगा मीनिंग बता देगा। ये देखें, जो भी लफ्ज चाहिए साथ साथ वो मीनिंग बता रही है डिक्शनरी। कॉमन नाउन का नहीं बताती, लेकिन हर एक चीज का। So you can utilize this dictionary, lingro.com, LINGRO.com, ठीक है। इस वेबसाइट को आप यूज करें, इसका फायदा उठाएं। इसमें से मैं इधर लिख देता हूँ उसका ना, lingo.com, इस वेबसाइट को आप जरूर विजिट किया करें। मुश्किल अल्फाज जो भी आपको मिले, डिक्शनरी आप नहीं यूज कर सकते, आप इसको इस्तेमाल करें, ठीक है। हाँ जी, आने कोई क्वेश्चन आपका? मैं अभी, दिस इज योर टाइम नाउ, प्लीज, हाउस इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। बिल्कुल सर ये वाली स्टोरी तो आपने शेयर की हुई है हमारे साथ। हाँ, बाकी भी आ जाती हैं, वो कोई मसला नहीं, जब आप गूगल करेंगे मिल जाएंगी आपको। अभी आपके क्वेश्चंस का टाइम है, पूछें। लेकिन सर डिस्कशन तो हमने इस पे करनी है ना। अपनी अपनी शॉर्ट स्टोरी पे। हाँ जी, जमीला, जमीला बच्चे। यस सर। हाँ, क्या बात है, आपने पेपर में क्या किया है? पेपर क्यों खराब किया आपने? चीजें समझ नहीं आई थी, क्या मसला हुआ था? सर दरअसल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो इस वजह से मैं तैयारी नहीं कर सकी, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना पेपर सही दूं। देखो ना, आप लोगों ने, मैंने आपका पेपर देखा, मैं उससे खुद बहुत परेशान हुआ हूँ, ठीक है ना।
आपका पेपर, ये फायजा का पेपर भी अच्छा नहीं था। मिनाइल, मिनाइल आपने क्या किया बेटा? मिनाइल, मिनाइल यस गायब है। सर। हाँ, क्या किया पेपर में? आपको अभी मैंने जो मिस्टेक्स बताई, आपको अंदाजा है कि ये आपने की हैं या मैंने जो है वो जानबूझ के आपको मार्क्स नहीं दिए? कोई ऐसा क्या लग रहा है आपको? सर मेरे क्वेश्चन ठीक नहीं हुए थे ना, जो स्टार्ट वाले वो मुझे पता है, क्योंकि उसका सर मुझे इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आगे लिटरेचर और वो डिफाइन करना तो वो मैंने सर किया था। हाँ, फायजा, फायजा आपने क्या किया पेपर में? नबा, निहाल खान और नबा दोनों के मार्क्स एक जैसे हैं ना? हाँ, नबा, निहाल खान बताए ना बेटा, क्या किया पेपर में, क्या वजह हुई है, क्यों आपने ठीक परफॉर्म नहीं किया? देखें ना, अभी आप लोग खुद ही खामोश हैं, फिर जब आप नहीं बताएंगे तो मुझे तो यही लगेगा कि या तो आप क्लास नहीं लगे। ये लोग, ये दोनों गायब हैं इधर, नहीं है दोनों, मैंने अभी नाम जिनके बोले हैं। अच्छा, फायजा का माइक खराब है, तो फायजा बेटा बताओ ना क्या मसला है। निहाल भी गायब है। तो once again I'm going to repeat my feedback related to your midterm papers, ठीक है? These were just your, this was your first evaluation, ठीक है? अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मिड टर्म के बाद आपकी वैल्यूएशंस आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप अपनी कोशिश जारी रखें। ट्राई टू improve your writing skills, try to improve your writing and answer, ठीक है? तो मुझे तो ये अच्छा लगता कि अगर आप को फिजिकली क्लास में आप होते और मैं आपको दिखाता भी पेपर, आप ये सादिया बतूल को आप पकड़ें, ठीक है? उसका पेपर अच्छा था, आपको भी पता चल गया रिजल्ट किसका अच्छा है, किसका कौन सा क्वेश्चन अच्छा है, ये भी पता चल गया आपको। सादिया बतूल और साइमा दे डिड वेरी वेल, आप इन दोनों को पकड़े। उसके बाद मैमूना जन्नत ने का पेपर अच्छा था। उसके बाद मिसाल और मिशाल, मिसाल एंड मिशाल दोनों का पेपर अच्छा था, ठीक है? अच्छा मीन्स कितना अच्छा भी नहीं था, हमना का पेपर अच्छा था। उसके बाद फरियाल की बारी आती है। तो लेकिन ये है कि पेपर अच्छे के हिसाब से देखा जाए तो पेपर सिर्फ ये दो बंदों का अच्छा था, सिर्फ ये सादिया एंड साइमा का। हमना का भी बेहतर था बस। बाकी लोग अभी दे नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू इम्प्रूव। बहुत सारी ज़रूरत है। फरियाल जो है हमना जो है ये मजीद इम्प्रूव कर सकती थी। फरियाल, आपको एक एक क्वेश्चन की इसीलिए डिटेल बताई है और आप इसमें से इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन शायद आपने तवज्जो नहीं दी या आपने इसको इतना लाइटली लिया पेपर को। हाँ जी।
आप लोगों को फिर मैं क्विज का मटेरियल भी शेयर कर दूं, वो भी आपके साथ हमने बात करनी है उसके ऊपर। ठीक है, अगर आपकी कोई वो नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो मेरे ख्याल में फिर अभी मजीद क्लास को कंटिन्यू नहीं करते। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को देखेंगे। आपका जो ब्रेक टाइम है वो हम आपको इकट्ठा ही एक ही दफ़ा लास्ट पे दे देते हैं, ताकि आप उसी में इसको यूटिलाइज करें। 5:20 पे हम ख़त्म कर लेंगे क्लास, ठीक है। सो यू विल हैव योर ब्रेक टाइम एंड एवरीथिंग विद इट। और प्लीज़ जो रिकॉर्डिंग मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, प्लीज़ गो देयर, डिस्कस, watch those recorded lectures. If you still you find any problem, please you can ask me. मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ, क्लास लेने आता हूँ, आप मुझे पकड़ें, पूछें, ठीक है। मुझसे आप जो भी वसूल करेंगे, आप पैसे देते हैं, मुफ्त नहीं पढ़ते। मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप लोग पैसे दे के पढ़ रहे हैं, तो आप हमसे वसूल करें सारी चीज़ें। इस तरह ना करें कि मैं आऊँ, मैं आके तकरीर करूँ, चला जाऊँ, आप भी बस ठीक है जी सुने और चले जाए। ऐसा ना करें, ठीक है। अगर आप में से कोई बंदा अभी रुकना चाहता है तो मैं उसको पैराग्राफ राइटिंग पे एक लेक्चर दे देता हूँ जो मैंने अपनी क्लास के लिए बनाया हुआ है। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं, सो देन आई कैन गिव यू अ लेक्चर ऑन पैराग्राफ राइटिंग, अ स्मॉल लेक्चर ऑन इट, ठीक है। थोड़ी सी देर के लिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, यस सर दे दें। जो सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। ओके सर। आपने चूंकि इसको पढ़ा भी है पैराग्राफ राइटिंग को, एंड आई एम श्योर कि आपको इसके बारे में इल्म भी होगा। अगली, अच्छा, इस क्लास में मैं आपको ये बता दूंगा, पैराग्राफ राइटिंग का थोड़ा सा बताऊंगा, और मैं अगली क्लास में मैं आपको एक और लेसन भी इससे रिलेटेड मैं आपको दूंगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फ्रेगमेंटरी सेंटेंसेस। थोड़ा सा वो बताऊंगा आपको कि आप जब आप लिखते हैं तो क्या गलतियां करते हैं, ठीक है। बल्कि बेहतर है कि आपको यही बताया जाए। वो पैराग्राफ राइटिंग में आपको अगली क्लास में बताऊंगा, आपने मुझे याद करवाना है लाजमी, ठीक है। मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा पैराग्राफ राइटिंग। आज मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, जो है ना आपका फ्रेगमेंटरी सेंटेंस, ठीक है, कि आप क्या गलतियां करते हैं, आप जरा उसको देख लें थोड़ा सा, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए अगली क्लास में हमारे पास टाइम जैसे ही होगा तो हम उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। हाँ जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस इज व्हाट दैट यू डू ना, a sentence fragment. What is a complete sentence? Since you have already learnt at intermediate level that what are the parts of a sentence, that subject and verb and object, you have seen it, sometimes subject, verb and complement. So all these things you have already seen when you were attending your intermediate classes. So a story starts from word basically, na? Word से start करते हैं हम. A word has got a meaning and then it carries its meaning when it is converted into a phrase, and then it gives half meaning. Then it is a further first this is just a single word,
then it is a group of words, it will become a phrase. Then there will be another group of word, ठीक है, that will make it a clause. क्लॉज के बाद क्या बनता है, थॉट मजीद जब कंप्लीट होती है तो सेंटेंस बन जाता है. बात ये है कि वर्ड है, लफ्ज है, लफ्ज आपको मीनिंग देता है. दो ग्रुप होता है, फ्रेज तक बात चली जाती है, तो फिर वो वर्ड जो है जिस साथ सेंटेंस के अंदर जो उसकी अक्रेंस होती है, कहाँ पे वो मौजूद है, उसके हिसाब से वो आपको मीनिंग देगा. ठीक है, उसी के हिसाब से आप उससे में से अंडरस्टैंडिंग आप ड्रा करेंगे कि जहां पे वो लगा हुआ है क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है. तो सेंटेंस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स सिर्फ 3 है, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड कंप्लीट थॉट. व्हेन यू आर गोइंग टू राइट एनीथिंग, so you have to make sure that your sentence is having a subject and predicate both. ठीक है, ये बात गौर करें इस बात पे कि जब आप लिख रहे होते हैं सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, but even then you are not going to deliver a complete thought. It means you are going to write a clause, not a sentence. For example, subject भी है, predicate भी है. If I read a book, subject भी, I read a book, subject है, predicate है, a book. I सब्जेक्ट है, रीड अ बुक जो प्रेडिकेट है, दोनों चीजें मौजूद हैं, नहीं फिर भी थॉट नहीं है. बिकॉज जब आपने कहा इफ आई रीड अ बुक, इफ से क्या हुआ, एक क्वेश्चन ध्यान में कि इससे आगे उसने कोई बात करनी है. थॉट इज नॉट कंप्लीट, सो कंप्लीट सेंटेंस इज व्हाट दैट गिव्स यू अ कंप्लीट थॉट. ठीक है, जहां पे मैंने जैसे एक बात की, इधर इसी तरह लिखें, द स्टूडेंट्स ऑफ फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी वेटेड फॉर द बस. Then this gives a complete thought. This is another one. The students of Fatima Jinnah University waited for the bus in the rain last week. हाँ जी, ठीक है, कि ऊपर वाला भी complete thought देता है, नीचे वाला sentence भी complete thought दे रहा है. So you look at these 3. देखें, sentence के लिए क्या होता है, sentence starts with capital letter and ends with full stop. कि जब आप लिखते हैं कैपिटल लेटर से स्टार्ट और फुल स्टॉप पे एंड लगा देते हैं, उससे पढ़ने वाला ये अंदाजा लगा दिस इज इन योर ओपिनियन दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस. और इफ इट इज इन योर ओपिनियन कंप्लीट सेंटेंस, डज इट गिव अ कंप्लीट थॉट या नहीं. ठीक है, अगर ये देता है देन इट्स ओके, इफ इट डजंट देन इट्स नॉट ओके. अब आप यहां देखें, सर जी जी बोले. सर साइमा और मैमूना की लाइट चली. ठीक है, ठीक है, अच्छा. अब यहां पे देखें, मुझे बताएं ना थोड़ा सा, ये 2-3 सेंटेंसेस का बताएं थोड़ा सा, क्या कहते हैं इसमें, क्या लिखा, पहले में क्या लिखा हुआ है, इससे आपको क्या अंदाजा होता है, कोई बता सकता है क्या मिस्टेक है इनके अंदर. First one is not having subject. Second one के साथ भी मसला है, verb missing है इसके अंदर. और थर्ड वाला क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है. ऐसा ही है ना, am I right? क्यों जी, मिनाइल, मिशाल, मिसाल, राबिया, मुकद्दस, सादिया, ऐसा ही है. यस सर. यस सर. देखें, अब यहाँ पे ये तीनों चीजें है ना, कि because it was raining, so the sentence is not complete ना, so they are incomplete. The first is not having subject, other is not having verb, third is a dependent clause. आज मेरी मामा यस सर. आराम से सो रही है कब्र में. आज इसकी बेटी ने का नया साल शुरू हो गया है. अब मेरी नजर कौन उतारेगा मामा. Okay, now see it. No subject. Missing verb. Dependent clause. अब now you can see it ना, कि these are incomplete sentences starting with a capital letter, ending with punctuation, but they are not an independent clause, nor they are expressing complete thought. ये क्या, माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन है.
ये मंगेश का माइक ऑन था, मंगेश का। ओके, आपने यहाँ देखा कि ये ना तो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ना ये कंप्लीट थॉट दे रहे हैं। सेंटेंस को जब आप देखते हैं तो सेंटेंस के अंदर अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखें, आई एम श्योर आपने इसको पढ़ा भी था ना। अच्छा, ये बच्चियों ने मुझे रिक्वेस्ट की है, प्लीज अगली क्लास में हम इंशाल्लाह स्टोरी को डिस्कस करेंगे, अगले वीक में नहीं, ठीक है ना। ड्रामा सिर्फ आपने सबमिट करवाना है, ड्रामा की शॉर्ट स्टोरी की हार्ड कॉपी नेक्स्ट वीक में होगी। तो ये इस पे इतनी बात है, आज हमने नहीं ली तो नेक्स्ट इसी वीक में नेक्स्ट क्लास पे हम शॉर्ट स्टोरीज की डिस्कशन करेंगे। ऐसा नहीं होता, वो शेड्यूल से हट के हम नहीं चल सकते, ठीक है। यू हैव टू गिव टाइम, दिस इज द कोर सब्जेक्ट ना, इसको तो थोड़ा सा आपने एफर्ट करनी है ना। ओके, फ्रेगमेंटरी सेंटेंसेस का क्या इशू होता है, जैसे मैंने बताया, व्हेन यू वर राइटिंग, व्हेन यू wrote your sentences, you were not aware about that, your sentences were missing the subject, they were missing verb or verb phrase, तो थॉट जो वो डिस्कनेक्टेड थी। आपने लिखा कि इफ आई राइट अ लेटर, आगे बात ही नहीं पूरी की, या आप बीच में से वर्ब खा गए या सब्जेक्ट खा गए, ठीक है। सो वी नीड टू फिक्स देम, ठीक करना है हमें, मींस वी हैव टू लुक एट दोज कंपोनेंट्स व्हिच लैक इन इट। आप देखेंगे कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर नहीं है। लुक एट दिस वन, टॉयज ऑफ ऑल काइंड आर थ्रोन एवरीवेयर। अब यहाँ पे everything is there, toys of all kinds thrown everywhere, ठीक है, toys of all kinds thrown everywhere, you can see subject भी है, verb भी है, but even then something is missing। अब your university offers majors in different subjects like English, like psychology, sociology, इसी तरह हमने यहाँ पे लिखा ना। इधर यहाँ देखें, यहाँ पे look at this one, shows no improvement in your efficiency। सेंटेंस है, गलती है, कोई बता सकता है इसको कैसे ठीक किया जाए? फ्लॉ देखे इसके अंदर, मसला क्या है पहले सेंटेंस में? हाँ जी, बता सकता है कोई? व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस सेंटेंस? खामोश ही हो गए आप लोग, गायब हो गए क्या? देखिए, shows no improvement in your efficiency, प्रेडिकेट पार्ट मौजूद है, सब्जेक्ट नहीं है, it shows हो सकता है। slammed the door and left, he slammed, she slammed, ये सारे के सारे वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। यस सर। और इसके साथ इससे पीछे कोई चीज कम है, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। देन दिस, ये आगे देखें यहाँ पे क्या चीज है, दैट टाइम ऑफ वंडर एंड अमेजमेंट, क्लॉथ्स एंड शूज scattered around the room, the electrical official for our district unpopular, inheritance the answer to her praise, Terry shows her award and gloating, यहाँ पे भी कुछ मिस है। It that time of wonder and amazement has gone, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, प्रेडिकेट पार्ट नहीं है। फिर ये आ जाता है आपका तीसरा, थर्ड वन, ये सारे डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। आपने सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस इंग्लिश 1 की क्लास में? डिड यू स्टडी सेंटेंस या नहीं पढ़ा? पढ़ा है सर। उसके अंदर सर आपको पढ़ा है। उसके अंदर आपको बताया गया होगा दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज प्रेडिकेट, ये बात की गई थी ना। सो ये दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट। देखें भी यहाँ पे हमने कहा कि बिकॉज इट वाज रेनिंग, सो इट इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज इट वाज रेनिंग, सो आगे इसका मतलब बात अभी कंप्लीट नहीं, थॉट कंप्लीट नहीं है। सो याद रखिए, सेंटेंस के अंदर थॉट कंप्लीट ना हो, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। प्रेडिकेट नहीं है, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। बाज जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंटेंशनली आप उनको इस्तेमाल करते हैं इनको, व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग, सो आप इन चीजों को यूज करते हैं बाज दफा। ये जो होते हैं ना फ्रेगमेंटरी सेंटेंसेस, जैसे आप कहते हैं हैव रीच्ड, डायलॉग चल रहा है, दो बंदे आपस में बोर होते हैं, तब हम ये लगाते हैं, लेकिन वो थॉट फिर कंप्लीट हो रही होती है। बट नॉट इन ऑल केसेस यू आर अलाउड, ठीक है। जब आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्जाम्स, यू आर नॉट अलाउड टू write fragmentary sentences, or this was the major mistake that that we make
यूजुअली व्हेन वी आर राइटिंग, जब आप लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं तो दरमियान में आप भूल जाते हैं, पता ही नहीं चलता, आप आगे निकल जाते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। GR प्लीज मेरे साथ वो शेयर कर दीजिएगा लिस्ट अटेंडेंस वाली सारी डिटेल, ताकि मैं उसको अपने पास अपडेट कर लूँ। किसी ने भी पेपर देखना हुआ तो मुझे सुबह मैसेज कर दे टाइम पे, मैं जिस वक्त जाऊंगा मैं बता दूंगा। अगर आप फिजिकली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे। आई होप सो, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, you will work hard and you will achieve your goals inshallah। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ असाइनमेंट नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो शॉर्ट स्टोरी जो आपको दी गई उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके जी, ओके सर। हाँ ओके, अस्सलाम वालेकुम। ओके सर।